आप सबको जय मसीह की। The theme of our worship this morning is the name of Jesus. आज जब हमारा naming of Jesus का दिन है, that is the 1st of January 2021, it is also called as the renewal of the covenant. Let us try to understand what exactly the Lord means by this. ये समय होगा कि हम अपना पहला गीत गाएंगे। Joy to the world, the Lord is come. Let all receive a King. Let every heart prepare in room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the earth, the Savior reigns. Let man their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. No more the sins and sorrows flow, nor thorns infest the ground. He comes to make His blessings flow, far as the curse is found, far as the curse is found, far as the curse is found. He rules the world with truth and grace, and makes the nations rule. The glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Almighty God, to whom all hearts open, all desires known, and from whom proceedeth our hid, cleanse the thoughts of our hearts by the inspiration of the Holy Spirit, that we may perfectly love you, and may worthily magnify your holy name, through Christ our Lord. Amen. Glory to God in the highest, and peace to His people on earth. Lord God, Heavenly King, Almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Lord Jesus Christ, Holy Son of the Father, Lord God, Lamb of God, you take away the sin of the world, have mercy on us. You are seated at the right hand of the Father, receive our prayer. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Old Testament reading is found written in the book of Exodus, chapter 3, verse 1 to 17, and Miss Irene Simon will lead us in the reading of the text. The Old Testament reading is taken from the book of Exodus, chapter 3, verses 1 to 17. Exodus chapter 3, verses 1 to 17. Now Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the backside of the desert, and came to the mountain of God, even to Horeb. And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush. And he looked, and behold, the bush burnt with fire, and the bush was not consumed. And Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burnt. And when the Lord saw that he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush and said, Moses, Moses.
And he said, Here am I. And he said, Draw not nigh hither, put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground. Moreover, he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face for he was afraid to look upon God. And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmasters. For I know their sorrows. And I am come down to deliver thee out of the hand of the Egyptians, and to bring them up out of that land unto a good land, and a large one, unto a land flowing with milk and honey, unto the place of the Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites. Now therefore, behold, the cry of the children of Israel is come unto me, and I have also seen the oppression wherewith the Egyptians oppressed them. Come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. And Moses said unto God, Who am I that I should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt? And he said, Certainly I will be with thee, and this shall be a token unto thee that I have sent thee. When thou hast brought forth the people out of Egypt, ye shall serve God upon this mountain. And Moses said unto God, Behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, The God of your fathers has sent me unto you, and they shall say to me, What is his name? What shall I say unto them? And God said unto Moses, I am that I am. And he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I am has sent me unto you. And God said, moreover unto Moses, Thus shalt thou say unto the children of Israel, The Lord of God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, hath sent me unto you. This is my name forever, and this is my memorial unto all generations. Go and gather the elders of Israel together, and say unto them, The Lord God of your fathers, the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob, appeared unto me, saying, I have surely visited you, and seen that this which is done to you in Egypt. And I have said, I will bring you out of the affliction of Egypt unto the land of the Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites, unto a land flowing with milk and honey. This is the word of the Lord. Thanks be to God. इस समय हम सब पढ़ेंगे भजन की पुस्तक भजन 20 उसका 1 से 8 आए और मिस मनीषा सैमुअल इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। भजन संहिता अध्याय 20 उसका 1 से 8 आयत। विजय के लिए प्रार्थना। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। इस समय हमारे बीच में पढ़ी जाएगी प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय उसकी 1 से 16 आयत और मिस तृप्ता मसीह इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। प्रेरितों के काम 3 का 1 से 16। प्रेरितों के काम 3 1 से 16। लंगड़े भिखारी को चंगा होना। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे।
जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उसकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो? हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी को इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। और तुमने अपने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरने में से जिलाया। और इस बात के हम गवाह हैं। और उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हमारे बीच में पढ़ी जाएगी लूका नबी की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसकी 15 से 21 आयत, और मिस्टर सिरिल पीटर जेम्स जिसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। लूका की इंजील, उसका दूसरा अध्याय, उसकी 15 से लेकर और 21वीं आयत तक। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वो बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कहीं आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। यह मसीह की इंजील है। ये समय होगा कि हम सब खड़े होकर अपना दूसरा गाना गाएंगे। Hallelujah.
Let us pray. प्यारे खुदावंद, हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरी सब नेमतों और बरकतों और बख्शिशों के लिए। और आज जब हम नए साल को मना रहे हैं, टुडे इज 1st of January 2021। खुदावंद, आज भी हमें याद है किस प्रकार से पूरा साल भी 2020 का एक लॉकडाउन के अंदर कटा है, और ये साल जो कि लॉकडाउन के अंदर चालू हुआ है, खुदावंद हम तुझसे प्रार्थना करते हैं जल्द ये बीमारी जाती रहे और खुदावंद खुशो-खुर्मी आ जाए और हर चीज तेरी मर्जी के मुताबिक तेरे समय से हो। खुदावंद, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपकी बरकत हमारे ऊपर हो और हम तेरे वचन को बहुत अच्छी तरह से समझें और समझाएं, और खुदावंद इस समय को अपने हाथ में लें और बरकत दें, ताकि हम सब सीखते जाएं और तेरी बरकतों को पाने वाले बने। आज की हमारी सभा में आप हमारे साथ हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर हम प्रेरितों के काम उसकी 3रा अध्याय उसकी 1 से 16 आयत को जब हम देखते हैं तो वहां क्या पाते हैं कि पतरस और यूहन्ना दोपहर के समय अराउंड 3 o'clock गोधूली के समय वो मंदिर की तरफ जा रहे थे, और मंदिर का गेट जो था वो ब्यूटीफुल कहलाता था, वो बहुत ही सुंदर कहलाता था। मगर उस सुंदर दरवाजे के आगे बहुत सारे गरीब लोग बैठे थे, और उस गरीब आदमी जिसका जिक्र किया गया है वो लंगड़ा था, और वो बचपन से लंगड़ा था, और लोग उसे वहां बैठा दिया करते थे। आप समझ सकते हैं उसकी व्यथा कितनी ज्यादा होगी कि किसी एक लंगड़े इंसान को सुबह वहां बैठा दिया जाए, एंड राइट फ्रॉम द मॉर्निंग टू इवनिंग ही इज जस्ट सिटिंग ओवर देयर, एंड इंसान को अपनी नेचुरल कॉल्स के लिए भी जाना होता है, एंड हाउ डिफिकल्ट फॉर हिम लाइफ वाज। और जब वो वहां उस ब्यूटीफुल गेट जिसका दरवाजे का नाम तो ब्यूटीफुल था, मगर देयर वाज नथिंग ब्यूटीफुल इन द लाइफ ऑफ दिस मैन। खुदावन मुझे और आपको कहता है कि ऐसी हालत में कई लोग होते हैं जिनका गम बहुत होता है, जिनका दुख बहुत होता है। कई लोग इस ईयर में जब गुजरे हैं तो उनके ऊपर बहुत से गम भी हैं, मगर मैं आप सबको प्रेरित करना चाहूंगा, आप सबको बताना चाहूंगा कि अगर परमेश्वर और उसका वचन आपके अंदर आ गया तो आपके जीवन की कमियां, आपके जीवन के दुख सब परमेश्वर अपने ऊपर उठाने को तैयार है। जब हम इस नए साल में 2021 में घुस रहे हैं तो हम एक चीज को ध्यान रखें कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो परमेश्वर की बरकतें हमारे ऊपर आएंगी ही आएंगी, और खुदावंद ये काम बहुत जल्दी कर देगा। प्रभु परमेश्वर मुझे और आपको पुकारता है
वो पतरस और यूहन्ना जब अंदर जा रहे थे, उस ब्यूटीफुल गेट पे पहुंचे तो वो इंसान जिसकी लाइफ में नथिंग वाज ब्यूटीफुल, वो वहां बैठा हुआ था और परमेश्वर वो उनकी तरफ आंखें लगा के टिकटिकी लगा के देख रहा था। और पतरस ने उनसे कहा, सिल्वर एंड गोल्ड है भाई, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है। और वो टिकटिकी किस लिए लगा रहा था कि कुछ सोना मिल जाए, कुछ चांदी मिल जाए, कुछ पैसा मिल जाए। मगर उसने कहा, मगर जो मेरे पास है, सिल्वर और गोल्ड तो मेरे पास नहीं है, मगर जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हम देखते हैं जीसस के नाम में इतनी बड़ी ताकत है कि यू आर हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आज का जो हमारा थीम है, नेमिंग ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम में एक जीवन है, एक ताकत है, जिस जीवन को हमें समझना है, जिस ताकत को हमें समझना है। और वो ताकत क्या है? वो हमारी कमजोरियों को, कमियों को पूरा कर सकती है, वो हमारे दुख को दूर कर सकती है, वो हमारे को ऐसी ताकत दे सकती है कि हम कमी घटी में भी अपने जीवन को अच्छा बिता सकते हैं। खुदावंद हमको कहता है कि तुम लोग दूसरों के लिए मदद का कारण बनो, दूसरों के लिए हेल्प का कारण बनो, तुम लोग ऐसे कारण बनो कि यीशु मसीह के नाम में ऐसे बड़े बड़े काम कर दो। और कहा हम खुदावंद के नाम में बड़े बड़े काम कर रहे हैं। खुदावंद मुझे और आपको पुकार रहा है कि जिसके जीवन में कोई गम है, दुख है, उसके दुख को आप हर लो। और ये कैसे हो सकता है? जब आप अपने वचन के द्वारा ऐसा शब्द बोलते हैं कि दूसरे को खुशी हो। हमारे वचन इतने सुंदर होने चाहिए, इतने प्यारे होने चाहिए, इतने अच्छे होने चाहिए, इतने जीवनदायक होने चाहिए कि हम दूसरे के अंदर खुशी खुशी भर दें, दूसरे के अंदर वो एंथुसियाज्म भर दें, वो चाहत भर दें कि वो जीने का शौक रखें। खुदावंद मुझे और आपको इस्तेमाल करना चाहता है और वो कहता है, एंड देन नॉट ओनली द नेम विल बी ब्यूटीफुल, द लाइफ विल बी ब्यूटीफुल। और हम देखते हैं वो इंसान कैसे एकदम खुश हो गया और वो उछलता हुआ, जंपिंग लाइक अ डियर, वो मंदिर में चला गया और लोग अचंभित हो गए। उन्होंने कहा ये कैसे हो गया? कईयों को तो अचरज हो रहा था, क्या ये वही आदमी है कि ये कोई उसका बहरूपिया है? हाउ कम इट इज नॉट पॉसिबल? अपने आप से तो पॉसिबल नहीं है। और जब पतरस और यूहन्ना ने देखा कि वो सब अचरज कर रहे हैं तो उन्होंने कहा, आप लोग में हमारी तरफ इतनी इस गौर से क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ऐसे हमने ये काम किया है, ये हमने नहीं किया है, ये काम यीशु मसीह नासरी के नाम से हुआ है। और प्रभु परमेश्वर कह रहा है, मेरे नाम में एक ऐसी ताकत है, उस नाम को जब जान लेंगे तब हमें बरकत मिलेगी। परमेश्वर मुझे और आपको इस्तेमाल करना चाहता है, हम सबको चाहत है उसकी कि हम उसके नाम को जान ले और बरकत ही बरकत पाए। अगर हम भजन की पुस्तक को पढ़ें, भजन 20, और वहां क्लियरली लिखा है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। यानी नाम के ऊपर भी एक बरकत है। एंड जीसस वाज द नेम गिवन टू मेरी। मेरी को पहले से ही बता दिया था जब्राइल फरिश्ते ने कि तू उसका नाम यीशु रखना, जिसका मतलब है गॉड विद अस। जब हम यीशु बोलते हैं तो हमको फील भी करना है कि खुदावंद हमारे साथ है। And he walks with me and he talks with me and he tells me that I am his own. खुदावंद मुझे बताता है कि वो मेरा है। He walks with me, he talks with me and tells me that I am his own. यानी खुदावंद कह रहा है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे, वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाल ले। यानी मतलब जब वो जो है पतरस और यूहन्ना उसको चंगाई दे रहे थे यीशु के नाम में, तो वो पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे। वो जो सहायता आई कहां से आई? पवित्र स्थान से आई। और परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है कि यीशु के नाम में वो ताकत है और वो ताकत ऐसे काम करती है जो अचंभित है। पतरस और यूहन्ना ने जो काम किया वो काबिल तारीफ था। और वो कह रहे हैं, वो तेरे सब अन्न बलि को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे, वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। परमेश्वर जब आपका और मेरे साथ रहने लगेगा,
इमैनुएल जो कि हमारे दिल में स्थापित होगा, हमारे दिल में वो रहेगा, तो वो हमारे हर एक काम को सफल करेगा। तब हम उसके उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वे अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वो तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारें तो महाराजा हमें उत्तर दे। परमेश्वर मुझे और आपको उत्तर देना चाहता है। यीशु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मगर जब हम यीशु को अपने साथ पाएंगे, अपने जीवन को देखें, क्या हम यीशु जैसे काम कर रहे हैं? Are we really what Christ wants us to be? और अगर हम ऐसे नहीं हैं, तो we have to stop and think. मूसा जो था वो चुनावा था, वो अपने बचपन से चुना गया था और उसको खुदाबंद ने बचाया था छुटपन से। और उसको जब उसकी माँ ने नील नदी में बहा दिया तो उसको मगरमच्छों से और डूब जाने से किसने बचाया? परमेश्वर ने बचाया। और फिर किस प्रकार से मूसा को उसने राजाओं की घर में ट्रेनिंग दी और किस प्रकार से मूसा की केयर की। और जब मूसा बड़ा हो गया तो उसने अथॉरिटी को अपने हाथ में लिया और फिर उसके बाद उसे वहां से भागना पड़ा। मगर हम देखते हैं अब मूसा वहां से इजिप्ट से जब भाग गया, 40 साल बीत गए, उसकी शादी हो गई, उसके बाद बच्चे हो गए, और तब जब वो अपनी भेड़ों की रखवाली करता था, तब परमेश्वर ने उससे झाड़ में आकर बात की। और वहां यूं लिखा है, झाड़ी में से परमेश्वर का दूत उससे बात करने लगा। और दूत जब उससे बात की तो उसने कहा, मैं परमेश्वर हूं। इसका मतलब गॉड द सन, द होली एंजल ऑफ गॉड, द जीसस क्राइस्ट द राइचियस वाज टॉकिंग टू हिम। और जब मूसा उस झाड़ी में से आवाज को सुन रहा था तो उसने कहा, मैंने तुझे चुन लिया है और तू मेरे लोगों को बचाएगा। और वो परमेश्वर की अथॉरिटी लेकर नीचे उतरा। मगर उस पहाड़ पर उसने कहा, तेरी जो लाठी है उसको तू छोड़ दे। और जैसे ही मूसा ने अपनी लाठी को छोड़ी तो क्या बन गई? सांप बन गई। यानी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको कहा, स्ट्रांगली अपने स्टाफ को पकड़ ले। यानी अगर तू लाठी को छोड़ता है तो क्या बन जाएगी? इट विल टर्न इनटू अ स्नेक। यानी परमेश्वर का वचन साम 23 में कहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। खुदावंद मुझे और आपको एक डिसिप्लिन में चाहता है कि हम चलें। कई बार हम वो डिसिप्लिन को भूल जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, अपने पास्टर्स का आदर करो। हम कई बार पास्टर्स का आदर नहीं करते। हम सोचते हैं सो इजी, कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं देख रहा। बट गॉड सेज, मैं अपने वचन के मुताबिक चलूंगा और जो मेरी बात को अवहेलना करेगा उसकी दुआ को भी मैं अवहेलना कर दूंगा। प्रभु कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम मांगते हैं, कई बार पाते ही नहीं, क्योंकि हम वो चीज नहीं कर रहे होते जो खुदावंद चाहता है कि हम करें। जब खुदा आपको पुकारता है तो वो आपको एक डिसिप्लिन लाइफ चाहता है, वो आपको एक प्यारी जीवन चाहता है, वो आपको एक रिस्पॉन्सिबल जीवन चाहता है, ताकि लोग तुम्हारे कामों को देखकर तुम्हारे परमेश्वर की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तो क्या हमारे काम ऐसे हैं? जब हम एक नए साल में गुजरे तो हमारे काम ऐसे होने चाहिए कि परमेश्वर हमें आके बचा ले, हमारे साथ आके खड़ा हो जाए। और परमेश्वर हमारा इमैनुएल हमारे साथ तब होगा जब हम अपने दिल में उसे जगह देंगे, जब हम दिल से एक डिसीजन ले लेंगे कि अब से हमें पथ पर चलना है, पथ भ्रष्ट नहीं होना है। अगर कोई हमें बुरा भला बोलता है मगर हमें उसका बुरा भला नहीं करना है, हमें वो करना है जो कि प्रभु हमें चाहता है। और जब ये चेंज हमारे अंदर आ जाएगा तब द होल लाइफ विल चेंज। खुदावंद मुझे और आपको पुकार रहा है,
ताकि हम परमेश्वर के जीवन की बरकत को समझने वाले बने। हम देखते हैं इजरायली लोग जब मूसा के साथ जा रहे थे और मूसा उन्हें लेके इजिप्ट से निकल लिया, तो वो समुद्र के पास पहुंचे और समुद्र के पास समुद्र वैसे ही था जैसा रहता है समुद्र, मगर उस दिन मूसा के पास आवाज आई कि तो अपनी लाठी समुद्र की तरफ बढ़ा, और जैसे ही उसने लाठी समुद्र की तरफ बढ़ाई, जस्ट बिकॉज ऑफ द ओबीडियंस, खुदावंत की रूह जो कि महानदों को सुखा देती है, अपने श्वास से महानदों को सुखा देती है, और बाइबल में लिखा है और मछलियां सूख जाती है, पानी सूख जाता है, उसने रात ही रात को पानी दो पार्ट कर दिया। एंड दे वेंट थ्रू द ड्राई ग्राउंड, पानी का नामो निशान नहीं रहा, दोनों तरफ पानी खड़ा था, मगर दे वर पासिंग थ्रू द ड्राई ग्राउंड। ये परमेश्वर वो है जो हमारे लिए बड़े बड़े काम कर देता है, एंड ही विल डू इट क्विकली। कई लोग कहते हैं कि हाँ नहीं ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपके लिए सच में कभी भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सब बरकतें विश्वासियों के लिए हैं। और अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आपके लिए कोई भी बरकत नहीं है। मगर अगर आपके अंदर विश्वास है कि परमेश्वर है, वो आपको चाहता है, वो चाहता है कि आप एक अच्छा जीवन बिताएं, आप एक रिस्पॉन्सिबल जीवन बिताएं, आप एक ओबीडिएंट जीवन बिताएं। अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि आप पास्टर्स की इज्जत करें, आप अपने बड़ों की इज्जत करें, और अगर आप उस पथ पर चल रहे हैं तो प्रभु आपके साथ है, क्योंकि प्रभु आपके साथ तभी होगा जब आप प्रभु के होंगे। क्योंकि अगर आप प्रभु के नहीं हैं तो प्रभु आपके लिए कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता। वो कहेंगे प्रभु हम तो तुझे कहते थे, तो प्रभु है। प्रभु मुझे और आपको कहता है जब मैंने तुझे चुना है तो मेरे जैसी राह चल, और जो मैंने तेरे को सिखाया उस पर चल। आज नए जीवन की राह पर चलने का दिन है। आज हमें एक रेजोल्यूशन के साथ एक नए साल में घुसना है। आज वो दिन है जिस दिन हमें डिसाइड करना है कि हम परमेश्वर की राह पर चलेंगे। दुनिया कैसे भी चल रही हो, हम वैसे नहीं चलेंगे, हम उस राह पर चलेंगे जो प्रभु ने हमारे लिए रखी है। और तब ना हम इधर मुड़ेंगे ना हम उधर मुड़ेंगे, मगर उस पथ पर चलने लगेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। और मूसा को भी उसने कहा कि तू मेरे पथ पर चल, इधर उधर नहीं जाना, सिर्फ उस पथ पे चल जो मैंने तेरे लिए रखा है। जब हम प्रभु के पथ को पकड़ लेंगे, थिंग्स विल सडनली चेंज फॉर अस। रात को समुद्र वैसा का वैसे ही था जैसा वो था, मगर सुबह तक वो फट गया और ये सब लोग उस समुद्र में से निकल गए। और हम देखते हैं फैरो और उसके साथी, उसकी जो सोल्जर्स थे, सब अपने चैरियट्स लेके 600 चैरियट्स लेके अंदर से गुजरने लगे, मगर वो पानी में डूब गए। परमेश्वर मुझे और आपको चाहता है कि हम ऐसे अच्छे लोग बने कि हम पानी पर चलने वाले बने। हम गाना गाते हैं, घबराहट की लहरों से डर, डूबो दुख के सागर में। परमेश्वर अपने लोगों को कहता है तुम डूबने वाली भेड़ें नहीं बनो, तुम पानी पर चलने वाली भेड़ें बनो। और ये सब तब होगा जब हम परमेश्वर पर अपना भरोसा रखेंगे, जब हम टिक टिक लगा के परमेश्वर की तरफ देखेंगे, क्योंकि दाता परमेश्वर है। जब आप काम कर रहे हैं अपने ऑफिस में तो आप अच्छा काम करें, पूरी तरह से काम करें। हम अपने ऑफिसों में काम पूरा नहीं करना चाहते, और जो भी काम हमें दिया जाता है हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं हम तो प्रभु तो देख ही नहीं रहा। प्रभु आपके हर काम को देख रहा है, और दाता कौन है? परमेश्वर है। जब आपको परमेश्वर रोटी दे रहा है तो आप काम किसका कर रहे हैं? परमेश्वर का कर रहे हैं। तो ईमानदारी से अपने काम को करें, और खुदावंद आपकी ईमानदारी को देखकर आपको बरकत देगा। हम चाहते हैं प्रभु की बरकत हम सब पर बनी रहे। हम देखते हैं जब परमेश्वर का वचन, जब यीशु यानी द एंजल जान में से मूसा से बात कर रहा था, उसने कहा तुम्हारा नाम, प्रभु आपका नाम क्या है? मैं लोगों को जाके बताऊंगा क्या नाम। तो उसने कहा आई एम हु आई एम। खुदावंद ने कह दिया
मैं हूं जो मैं हूं, यानी मतलब कि परमेश्वर मुझे और आपको चाहता है कि हम उसको समझ लें। खुदावंद ने मरियम को वो नाम पहले से बता दिया कि वो नाम जो मैं हूं उसका नाम क्या होगा? गॉड विद अस, इमैनुअल, जीसस क्राइस्ट द राइचियस। खुदावंद मुझे और आपको कहता है तुमने परमेश्वर के नाम को जाना है, परमेश्वर को जाना है, उसकी राह पर चलो और तुम बरकत ही बरकत पाओगे। हम देखते हैं, अगर हम गॉस्पेल रीडिंग को देखें तो परमेश्वर ने अपने एंजल्स को शेपर्ड्स के पास भेजा। हम देख रहे हैं चर्च और चर्च की डेवलपमेंट में दो चीजें बहुत मेंशन की गई हैं, शेपर्ड एंड शीप। देयर इज नो थर्ड नेम, शेपर्ड एंड शीप। अगर आप देखें परमेश्वर के विधान को, आपका एक शेपर्ड है और भेड़ है। मेन शेपर्ड कौन है? द गुड शेपर्ड जीसस क्राइस्ट। और उसने अपने शेपर्ड्स को नियुक्त किया, प्रॉफिट्स को नियुक्त किया, पास्टर्स को नियुक्त किया, ताकि वो अपनी भेड़ों की सुधि लें। अब उसने कलीसिया को भेड़ क्यों कहा? क्योंकि भेड़ एक बहुत ही सॉफ्ट सा जानवर है, वो किसी को भी चोट नहीं पहुंचाता है और उसको प्रेडेटर्स आके खा जाते हैं, शिकारी जानवर उसको खा लेते हैं। और भेड़ों को बहुत सी चीजें तंग करती हैं, और वो क्या है? शेर हैं, चीते हैं, भालू हैं और बड़े बड़े जानवर हैं, डोमेस्टिक डॉग्स हैं। और शेपर्ड इन सब से उनको बचाता है, भेड़ों को, और भेड़ों की रक्षा करता है, केयर करता है। यानी एज शेपर्ड्स हमको शेपर्ड स्टॉक से डील करना है, यानी हमें भेड़ों को, किसी भी भेड़ को तंग नहीं होने देना है। दैट इज द ड्यूटी ऑफ अ शेपर्ड। अगर कोई भेड़ दूसरी भेड़ को तंग कर रही है तो हमको उसको रोकना है और कहना है नो, दिस इज नॉट डन। यानी परमेश्वर अपनी भेड़ों में इंटरेस्टेड है और वो कहता है कि मैं अपनी भेड़ों को प्यार करता हूं, मगर मेरी भेड़ों को भी मुझे प्यार करना है। क्योंकि भेड़ जो है, अगर हम शाम 23 को देखें तो शेपर्ड उनकी केयर करता है, वो उनके सर पर तेल लगाता है, तेल के साथ कुछ जड़ी बूटियां भी लगाता है ताकि उसके सर में ताकत आए, और वो तेल बहकर उन भेड़ों की नाक तक जाता है। और मैंने ये बात को जब जाना कि भेड़ जो है, जब उसकी नाक के अंदर कुछ मक्खियां होती हैं, वो कीड़े अपने एग्स डाल देती हैं, और जब वो एग्स जो उसकी नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन में बढ़ने लगते हैं तो भेड़ जो होती है वो पिघला जाती है दुख के मारे, और वो अपनी नाक को इधर उधर मार मार के, दीवार पे मार के, जमीन पे मार के अपने आप को मार देती है। तो वो जो तेल है वो उसके सर को तराई देता है, साथ ही साथ वो बह के उसकी नाक में घुस जाता है और उन फ्लाइज को अंदर कीड़े नहीं डालने देता, अब वो अपने एग्स को नहीं डालने देता। ये सब केयर कौन कर रहा है? शेपर्ड कर रहा है। और तभी परमेश्वर का वो जो दास, यानी मतलब दाऊद जो कि शेपर्ड खुद था, उसने कहा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति ना होगी। और परमेश्वर जो है वो उन भेड़ों का डोर है। उसने कहा आई एम द गुड शेपर्ड, आई एम द डोर। क्योंकि अगर हम देखें वो लोग एक छोटी सी दीवारी बना लेते थे, कोई 3-3, 4-4 फुट ऊंची, ताकि भेड़ उसको फांद ना पड़े, और फिर उस गोल दीवारी सी बना के उसका जो गेट होता था उस पर शेपर्ड खुद सो जाता था, ताकि कोई भी भेड़ उससे निकले तो गुजर के निकले तो उसे पता चल जाएगा। तो जो हमारी भेड़ें हैं वो बहुत जल्दी डूब जाती हैं, क्योंकि भेड़ को एक चीज बहुत अच्छी तरह से आती है, डूबना। और जो भेड़ है अगर वो पानी में गिर जाए तो डेफिनेटली डूब जाती है। हम भी दुख के सागर में बहुत जल्दी डूब जाते हैं। परमेश्वर कह रहा है जब दुखों में हो तो तुम सागर की लहरों की तरफ मत देखो, तुम परमेश्वर की तरफ देखो, उस नाम की तरफ देखो, यीशु नाम जो कि हमें दिया गया है ताकि हम बच जाएं। जो कोई इस पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो आप इस साल, जब हम इस साल में घुस रहे हैं, प्रभु यीशु की तरफ देखने वाले बने,
और परमेश्वर की तरफ देखें। और हम देखते हैं परमेश्वर जो है अपने शेपर्ड्स को कहता है तुम मेरी भेड़ों की अगुवाई करो। अब भेड़ें आजकल चर्च में नहीं आ सकती हैं, तो शेपर्ड आपके पास सरमन भेज रहा है। अब उस घास को खाना किसका काम है? भेड़ों का काम है। आपको वो सरमन सुनना है। अगर आप नहीं सुन रहे तो यू आर नॉट लिसनिंग टू व्हाट द लॉर्ड इज वांटिंग टू लिसन। और जब खुदावंद आपको चाह रहा है कि आप सुने, तो वो सुनना है, उसको अपने दिल में जगह देनी है और उसके मुताबिक फल भी लाना है। और तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, आपके हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। खुदावंद आपको बहुत सी बरकतें देगा। तो हम देख रहे हैं ये शेपर्ड्स वो थे जो कि अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, और उनके पास एक दूत आ उतरा और साथ में होली एंजल्स उतर आए। अब ये दूत जो थे शेपर्ड्स के पास ही क्यों आए और लोगों के पास क्यों नहीं गए? गोल्ड स्मिथ के पास क्यों नहीं गए? सुनार के पास क्यों नहीं गए? किसी लोहार के पास क्यों नहीं गए? क्यों? क्योंकि परमेश्वर इज कंसर्न विद द शीप एंड द शेपर्ड्स। खुदावंद कह रहा है भेड़ों को अपने शेपर्ड्स की आवाज को सुनना है, क्योंकि शेपर्ड का काम है परमेश्वर के वचन को पढ़े और वो आपको लाके दे। और आपका काम है कि जो परमेश्वर का वचन लाया गया आपके लिए, आप उसको सुने, उसको चने और उसके मुताबिक अपने फल को लाएं। मीका की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसकी 14वीं आयत से अगर हम पढ़ते हैं तो वहां क्लियरली लिखा है, आई मीका, आई शेपर्ड मीका, तू अपना स्टाफ को अच्छी तरह से पकड़ ले, अपनी लाठी लिए हुए अपनी भेड़ों की अगुवाई कर। तू अपनी भेड़ों की लाठी लिए हुए अगुवाई कर, जो कि कारमेल के जंगलों में अलग अलग बैठती हैं। वो पूर्व काल की तरह बशान और गिलाद में चरा करें, ऐसा ही लिखा है। यानी मतलब शेपर्ड की ड्यूटी है। शेपर्ड अपनी भेड़ों को हरी हरी चराइयों में बिठाता है। मतलब भेड़ अगर सूखी चराई में भी ले जाए चली जाएगी तो वहीं पे खाने लगेगी, वहीं चलने लगेगी, मगर वो सूखा खाने से ना तो वो ताकत पाएगी ना वो फिट रहेगी। तो यहां पर प्रभु का वचन मीका नबी से कह रहा है कि तू अपनी भेड़ों को हरी हरी चराइयां दिया कर। अब वो हरी हरी चराइयां क्या है? ना तो आप फिजिकली भेड़े हैं और ना आप घास खाते हैं, मगर फिर वो काम खाने की बात कर रहा है। और आप अगर भेड़े हैं और हम इंसान हैं और इंसान को वो भेड़ कह रहा है, तो खाना क्या है? घास नहीं, वो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन को हमें आपको खिलाना है और तू उनको हरी हरी घास खिला। मतलब नया खुदावंद के वचन से हरी हरी घास उनको दिया जाए ताकि वो पौष्टिक बने, ताकि वो ताकतवर बने, वो विश्वास में ताकतवर बने, वो ओबीडियंस में ताकतवर बने, वो प्रभु की राह पर चलने में ताकतवर बने। हम हर गलत चीज में, हर दुख में डूब जाते हैं। हम हर सिन के अंदर पढ़ने में 2 मिनट नहीं लगाते। हम ईगो और एइमिंग में बढ़ जाते हैं। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इट डज नॉट लुक नाइस। परमेश्वर कह रहा है हम सबको अपनी खुदी का इनकार करना है और परमेश्वर की राह पर चलना है। आज मीका अपनी भेड़ों की लाठी लिए हुए तू अगुवाई कर, ताकि वो भरपूर वचन से भर जाए। हम भी अपनी भेड़ों को वचन दे रहे हैं। हम कह रहे हैं भैया ऑनलाइन प्रार्थनाएं करें। आजकल मिल नहीं सकते तो ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग्स हो रही हैं। आप जानते हैं कि हमारे चर्च में लैंड सीजन था और ये कोविड वगैरह नहीं था, तो एक दिन में 3 समाएं हों और 40 दिन में कोई 100 समाएं होंगे। तो ये कैसे हो गया? क्योंकि वी वर देयर टू फीड, मगर अब वो कोविड के चलते वो पॉसिबल नहीं है। तो आप अपने घरों पे आपको समझ दिया जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है ऑनलाइन जुड़ो, आपसे कहा जा रहा है ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग्स करें, और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि एक सामूहिक मीटिंग हम करते हैं ऑनलाइन वेडनेसडे को, जिसमें अब तो बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। एंड आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड कि हमारी कलीसिया वो हरी हरी घास खाना चाहती है, वो वचन में बढ़ रही है। और आप अपने पास्टर के लिए भी दुआ किया करें कि पास्टर भी आत्मिक उन्माद से भरा रहे, क्योंकि जब हम आत्मिक उन्माद से भरे रहेंगे तब हम प्रभु की ताकत में बढ़ जाएंगे
और एक ऐसा रिलेशनशिप स्थापित हो जाएगा कि हम जो कुछ मांगेंगे प्रभु हमारी सुनेगा। प्रभु मुझे और आपको ऐसी बरकतें देना चाहता है, इसलिए परमेश्वर का वचन भी शेपर्ड्स के पास आया और उसने कहा जाओ देखो तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जाओ और उसको इस्तेमाल करो। और वो गए, वो खुद उठ के गए, अपनी भेड़ों को किसी की केयर में छोड़ के सारे सर्दी में आग ताप रहे थे, वो सब छोड़ के वो निकल लिए और उन्होंने जाके मसीह को वहां पाए और चारों तरफ उसकी मनादी कर दी। यानी पहले तो हमें मसीह को समझना है, मसीह के मुताबिक चलना है और फिर उसकी मनादी चारों तरफ कर देनी कि खुदावंद तू है, गॉड इज विद अस। खुदावंद हमारे साथ, हमारे दुख में है, हमारी कमी में है, हमारी घटी में है, हमारी खुशी में है और वो चाहता है कि हम हर समय जय के उत्सव में चलने वाली बने हों। और वो जय का उत्सव किस जय की बात कर रहा है? वो गुनाह पर विजय पाने की बात कर रहा है। परमेश्वर इस दुनिया में इसलिए आया कि वो हमें गुनाह से छुटकारा बख्शे। तो वो चाहता है कि हम गुनाह के ऊपर जय पाएं और ये जय हमारी तब है जब हम परमेश्वर के वचन को समझते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं, अपने माइंड को उसकी में लगाते हैं और अपने लाइफ को ढालते हैं परमेश्वर की वचन के मुताबिक चलने की। लोग हमें बुरा बोले मगर हम दूसरे के लिए बुरा नहीं बोलेंगे। दैट इज व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ गॉड। दूसरे हमारा बुरा करें मगर हम किसी का बुरा नहीं करेंगे। अ पैराडाइम शिफ्ट, अ चेंज हैज टू कम और वो परमेश्वर चेंज हमारे अंदर चाहता है, इसलिए वो शेपर्ड्स के पास आया। परमेश्वर कहता है तुम लोग जो कि परमेश्वर के वचन से भरे लोग संसार की ज्योति हो। वो नगर जो पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। तुम लोग अगर मेरे वचन पर बन गए तो तुम रोशन जीवन बिताने लगोगे। लोग तुम्हारी बुराई कर करके थक जाएंगे मगर तुम अच्छाई करने से पेटिश नहीं हटोगे। That is what is the Lord wanting। क्या है कलीसिया, मैं तुम्हारे खुदा हूं और तुम मेरे लोग हो, तुम मेरी राह पर चलो और एक दूसरे को माफ करना सीखो, एक दूसरे के साथ खड़े होना सीखो, एक दूसरे के लिए मदद का कारण बनना सीखो। और अगर हम नहीं सीखा तो हम साल आते आ जाएंगे, साल जाते जाएंगे मगर परिवर्तन कुछ भी नहीं होगा। सामिस कह रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे शुद्ध जल के झरने के पास ले जाता है। वो शुद्ध जल का झरना परमेश्वर का लहू है जो कि कलवरी से बह रहा है और उसके अंदर अपने लहू, उसके लहू में अपने आप को धो लेना है और वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से बड़ी हुई तराइयों पर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। खुदावंद मुझे और आपको ऐसा जीवन बिता देना चाहता है कि हम परमेश्वर के उस चाइल्ड को देखें और उसको अपने दिल में जगह दें। जब यीशु इस दुनिया में आए तो उनके लिए कोई जगह नहीं थी मगर जिस भी इंसान ने अपने दिल में उसे जगह दी वो उसके दिल का राजा बना और बरकत पाई, उस इंसान ने बरकत पाई। तो हम चाहते हैं कि हम सब और हमारी कलीसिया और जितने भी हमारे वचन को सुन रहे हैं सब परमेश्वर से बरकत पाने वाले लोग बने। तो आइए हम सरों को अपने खुदा के हज़ूर झुकाएं और दुआ करें, खुदावंद हम तेरी बरकत को पाने वाले अच्छे और नेक लोग बनना चाहते हैं। प्रभु यीशु हम तेरे सामने अपने सरों को झुकाते हैं, अपने आप को और अपनी कलीसिया को तेरे सामने लाते हैं। आए खुदावंद हम तुझसे दुआ करते हैं कि जब हम एक नए साल में एंटर हुए हैं तो अपनी कलीसिया की सच्ची सुधी लें और खुदावंद अपनी कलीसिया को हरी हरी घास खिलाया करें, हरी हरी तेरे वचन की बातें बताया करें। और खुदावंद हमारी कलीसिया ऑनलाइन जो जुड़ी हुई है हमारे साथ और खुदावंद बाइबल स्टडीज में लगी हुई है, प्रभु और भी बढ़ती जाए और हम सब तेरी वचन को बहुतायत से जाने और अपने जीवनों को तेरे वचन के मुताबिक परिवर्तित कर लें और खुदावंद ऐसा रिलेशन स्थापित होने पाए कि हम मांगे और हमें मिल जाए। While we are speaking, Lord, you may hear us. We beseech thee, ऐसा हो जाए।
और आपकी बरकत हमारे साथ हर समय बनी रहे। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। आप सब लोगों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। हम एक नए साल में इस समय घुस चुके हैं और मैं चाहता हूं कि हम प्रभु में बने रहें और हम धन्यवाद देते हैं कि ये साल जो गुजरा है उसमें आपको खुदा ने बचा के रखा, आप पर रहम किया। अगर आप अपनी लाइफ को देखें कि चाहे कितने भी गम से आप लोग गुजरे हो, चाहे कितने भी पीड़ा से आप लोग गुजरे हो, खुदा ने संभाल लिया है। और बहुत से लोगों ने अपने लव्ड वंस को खोया है, बहुत से लोग बचा लिए गए हैं, मगर खुदा हमारे साथ हर समय था, है और रहेगा। और हम चाहते हैं कि हम प्रभु में बढ़ते चले जाएं। मैं जैसा आपको हर समय रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके घर में आप पास्टर की विजिट चाहते हैं तो आजकल आप ऑनलाइन विजिट कर रहे हैं, और जिस दिन भी आप चाहें आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको लिंक भेजेंगे एंड देन वी कैन हैव द प्रेयर मीटिंग विद यू। सो प्लीज गेट इन टच विद योर पास्टर एंड बी इन प्रेयर मीटिंग विद मी। और हम हर समय कहते हैं कि आप हमसे कांटेक्ट करें, हम रेगुलर पर्सनल प्रेयर मीटिंग्स कर रहे हैं। साथ ही साथ हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग हमारी सामूहिक बाइबल स्टडी में जरूर जुड़ें, जो कि हर वेडनेसडे को 7 बजे होती है। उसके अंदर हम बहुत डीप स्टडी को कर रहे हैं, बहुत कुछ समझ रहे हैं, और अब तो थैंक्स टू जीसस बहुत सारे लोग आते हैं और खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग कॉर्पोरेट बाइबल स्टडी में, जो कि आजकल हिब्रूज की किताब चल रही है, फिर रोमन्स पे चल देंगे, फिर कोई और किताब पकड़ लेंगे, अब तो ये हम रेगुलर चलते ही रहेंगे। वी हैव टू डीपली अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड। और आप भी मेरे लिए दुआ करें कि मैं परमेश्वर के वचन को खूब गहरा पढूं और खूब गहरा समझाऊं, ताकि आप लोगों को हरी हरी घास में लिए चले, ताकि आप लोग उस घास को खा के, यानी परमेश्वर के वचन को खाकर पौष्टिक हो और एक अच्छा रिलेशनशिप स्थापित हो, ताकि आप व्हाइल यू आर येट स्पीकिंग गॉड विल हियर, ऐसा रिलेशनशिप हमारा स्थापित होने पाए। तो मैं आप सबको गुजारिश करूंगा कि आप ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग्स अपनी रखिए, पर्सनल एज वेल एज सामूहिक यानी कॉर्पोरेट प्रेयर मीटिंग, जो कि बाइबल स्टडी हमारी होती है वेडनेसडे को 7 बजे, उसमें जरूर जुड़ें। आप लोगों को ये भी कहते हैं कि अब हम जब गाना गाएंगे, दूसरा गाना, उसके अंदर आप अपना हदिया कलेक्ट कर लें और आप अपने डोनेशंस जो चर्च को देना चाहते हैं वो आप चर्च के अकाउंट्स पे दे सकते हैं। द अकाउंट डिटेल्स आर ऑन द स्क्रीन। आप उन डिटेल्स को बने, बहुत इजी है, ऑनलाइन ट्रांसफर आप जरूर कर दें, और उसके जो भी ऑनलाइन आप कर रहे हैं वो आपने क्या चीज दी है उसकी इंफॉर्मेशन मुझे दें, ताकि मैं उसको अकाउंट्स ग्रुप पे डाल दूं और आप जो है उसकी रसीद पा सकें। अगर आपको फंड ट्रांसफर करने में मुश्किल होती है तो एक बहुत ही अच्छा तरीका हमने निकाला है कि आप चेक जो है आप चर्च के नाम पर दे सकते हैं, और आप चर्च के अकाउंट का नंबर और डिटेल्स, चर्च के नाम तो आप चेक के आगे लिख दें, और जो उसकी डिटेल्स है कि चर्च का अकाउंट नंबर उसके पीछे लिख दें, और साथ ही साथ आप हमें सूचित भी कर दें, ताकि हम ट्रेजरर साहब से गुजारिश करें कि वो आपको उसकी रसीदें जल्द से जल्द दे दें। अगर आपको ऑनलाइन ट्रांसफर करने में या चेक देने में भी आप मुश्किल होती है, तो आप लोग जो है अपना हदिया जो है वो चर्च पे मिस्टर सलीम आपको मिलेंगे, आप उनको दे सकते हैं, और साथ ही साथ एक रजिस्टर चर्च पे रखा हुआ है, आप उसके अंदर वो सारा हदिया जो भी आपने कलेक्ट किया है उसको आप वहां दे के उसको रिकॉर्ड कर दें, और वो रजिस्टर जो है वो सलीम भाई के पास रहता है, उसमें आप अपने हाथ से लिख दें कि हमने इतना पैसा जमा करा है और उतना कैश आप सलीम भाई को दे दें। सलीम भाई ट्रेजरर साहब को दे देंगे और ट्रेजरर साहब उसकी रसीद आपको काट के दे देंगे। ये दूसरा तरीका है जो कि बहुत ही सुचारू हमने निकाला है। तो प्रभु आप सबके साथ हो, आप प्रभु में बनते जाएं, प्रभु परमेश्वर की बरकत आपके साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आया है यीशु आया है।
session, let us join our prayer for the whole human family with the unceasing prayer of Christ the Lord. Heavenly Father, we pray for justice and peace in the whole world and for fullness of life for everyone. Lord, in your mercy, hear our prayer. For all who live in this place, for the removal of all that divides us from each other, and for true harmony in our country. Lord, in your mercy, hear our prayer. For all engaged in agriculture, industry, and commerce, for all workers, skilled and unskilled, and for all those who defend our country, Lord, in your mercy, hear our prayer. For teachers and students, scientists, artists, and writers, and for all who influence the minds and hearts of others, Lord, in your mercy, hear our prayer. For those who are suffering, the poor and hungry, the destitute and oppressed, the unemployed, the sick and the dying, and for all who help them, Lord, in your mercy, hear our prayer. For all to whom authority is entrusted in this and other countries, and especially for our President, the Prime Minister, the Governor, and the Chief Minister of this state, and for all who have power over other people, Lord, in your mercy, hear our prayer. For the unity of all Christian people, and for their witness and service in the world, Lord, in your mercy, hear our prayers. For your whole church in our country, for its councils and leaders, especially for our moderator of the Church of South India, and Metropolitan of the Marthoma Church, for Right Reverend Dr. Waris K. Masih, our Bishop, for Reverend Samuel Ashish Jacob, our Presbyter, and for all other ministers of your church, that they may be faithful in their ministry. Lord, in your mercy, hear our prayer. That with all your people who have faithfully served you in this life, we also may share in the eternal joy of your kingdom. Lord, in your mercy, hear our prayer. Hasten, Heavenly Father, the coming of your kingdom, and grant these petitions, which we offer in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. आए अजीजों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि वह हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की जिंदगी को बचाए। इसलिए आइए हम तौबा और ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्म को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। तमाम कुदरत का खुदा उन सबको माफ करता है जो अपने साथियों को माफ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वह हम पर रहम करे, हमें हमारे गुनाहों को बख्शे और उन सब से हमको रिहाई दे। अर्तका की नेकी में हमको मुस्तक को मजबूत करे और हमें हमेशा की जिंदगी में कायम रखे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। Let us stand for the please. We are the body of Christ. In the one spirit we were all baptized into one body. Let us pursue all that make for peace and builds up our common life. The peace of the Lord be always with you. And also with you.
बादशाह, तमाम कुदरत के मालिक और असली खुदा, यह ना सिर्फ मुनासिब बल्कि हमारा फर्ज और खुशी भी है कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह के वसीले तेरा शुक्र और तमजीद करें। वही तेरा सच्चा और जिंदा कलाम है, उसी के वसीले तूने शुरू ही से तमाम चीजें पैदा की और हमें अपनी सूरत पर बनाया। उसी के वसीले तू दुनिया में हर आने वाले इंसान को रोशन करता है और हर जमाने में तूने नबियों और दानाओं को भेजा कि वे तेरे बंदों को तेरी तरफ रजू कराएं। उसी के वसीले तूने हमें गुनाह से छुटकारा बख्शा है। वह हमारे लिए इंसान बना, हमारी कादे शरीर पर चढ़ाया गया और तीसरे दिन फिर जी उठा। उसी के जरिए तू हमें अपना पाक और जिंदगी देने वाला रूह इनायत करता है ताकि हम तेरे बच्चे ठहरें और तेरी मई मखलूकात के पहले फल हों। आए आसमानी बाप, अपने बेटे हमारे मुंजी यीशु मसीह के जरिए हमारी हमदो दायमी कबूल फरमा। हमें जो उसके नमूने की पैरवी करते और उसके हुक्म को मानते हैं, यह बख्श की तेरे रूह की कुव्वत से ये रोजी और मैं किए नियमतें हमारे लिए उसी का बदन और खून हो जो हमारे वास्ते हुआ और फिर जी उठा। For in the same night that Jesus was betrayed, he took bread and after giving thanks, he broke it, gave it to his disciples and said, "Take, eat, this is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." In the same way after supper, thou dost take the cup and having given thanks, thou dost give it to thy disciples and said, "Drink this all of you, for this is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many for the forgiveness of sins. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Therefore, Heavenly Father, in remembrance of him, we set apart this bread and this cup. We celebrate and proclaim his perfect sacrifice made once for all upon the cross, his resurrection from the dead, and his ascension into heaven, and we look for his coming in glory. Christ is I, Christ is risen, Christ shall come again. Let us all humbly pray together, accept through him, our great high priest, this our sacrifice of thanks and praise. And as we eat and drink these holy gifts in the presence of your divine majesty, renew us by your spirit, inspire us with your love, and unite us in the body of your Son, Jesus Christ our Lord, with him and in him and through him, by the power of the Holy Spirit, with all who stand before you in earth and heaven, we worship you, Father Almighty, in songs of everlasting praise. Blessing and honor and glory and power be yours forever and ever. Amen. As our Savior Christ has taught us, so we pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the time of trial, but deliver us from evil. For the kingdom, the power and the glory are yours, now and forever. Amen. आइए हम सब अपने सरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और खामोशी में अपने खुदा के सामने अपने दिलों को खोल दें। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम सब दुआएं सराई करें। आए रहीम खुदावन, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाह गुन और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वह खुदावन है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए आए करीम खुदावन, ये बात कि हम तेरे अजीज बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिएं कि हमारे गुनाह आलूदा बदन और वहीं उसके बेशकीमती बदन और खून से धोई जाएं और हम उसमें और वो हमें हमेशा बसे। आमीन।
Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Jesus, Lamb of God, have mercy on us. Jesus, bearer of our sins, have mercy on us. Jesus, Redeemer of the world, give us your peace. आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हम दिलो जान से तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें अपने बेटे यीशु मसीह के बदन और खून की रूहानी तेजाब से सेव किया है। हम उसी के वसीले से अपने आप को जिंदा कुर्बानी होने के लिए तेरी नजर करते हैं। ये बख्श कि हम तेरे रूह की कुव्वत से मामूर होकर यहाँ से रुखसत हों और अपनी जिंदगी और खिदमत से हर वक्त तेरा जलाल जाहिर करें। आमीन। The peace of God which passes all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and of His Son Jesus Christ our Lord, and the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be amongst us and remain with us always. Amen. 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 Go in peace to love and serve the Lord. In the name of Christ. Amen. As our final hymn, we will all rise up and sing